بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت حسن کو زہر کیوں دیا گیا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسن رضی اللہ پر ان کی زندگی میں کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے اور پھر ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت جمانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ کی بیوی کو ہی بہلا پھسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن کو ایسا زہر دیا کہ جس کے اثر سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگی۔ پھر وفات کے بعد بنو امیہ کے لوگ لڑنے کے لیے کیسے تلوار لے کر نکل آئے اور قریب تھا کہ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ اپنے بھائی حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنانے کے لیے بنو امیہ کے لوگوں سے لڑ جاتے اور یہ لڑائی ایک جنگ میں بدل کر ہزاروں صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون بہنے کا سبب بنتی، لیکن ایک صحابی نے آ کر کیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان سبھی باتوں کا خلاصہ کریں گے اور ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد اس کا نچوڑ آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ کو ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور دیکھیں کہ کیسے ان ظالموں نے دنیا کی حکومت پانے کے لیے نواسۂ رسول کا کلیجہ چیر کر اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سن کر سخت سے سخت دل انسان بھی اپنے آنسو روک نہیں سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائیں، تو آخر میں وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر ہی کر گیا۔ حضرت حسن نے تو زہر دینے والے کا نام نہ بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ کی بیوی یزدہ کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ کو ایسا زہر دیں کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین کو ہٹا دیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں خود بنوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر یزدہ بیوی نے ایک ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اسے پانی میں ملا دیا اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا جس سے حضرت حسن رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بولا۔ حضرت زینب اس وقت مصلے پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ نے کہا کہ زینب، میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی فرمائیے۔ تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور والد حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، میرے ماں باپ کو گالی دی گئی۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سمجھ گئی کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین تھے۔ لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ نے بہن سے کہا کہ بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئی۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہ تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا
तो पहले तो कुछ भी महसूस ना हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वो पानी अंदर ही अंदर आंतों को काटने लगा और फिर खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। उस जहर के असर से आंतें कट कट कर बाहर निकलने लगी। ये देख हजरत जैनब बहुत डर गई और रोने लगी। तारीख लिखने वाले ने लिखा है कि उस जहर ने हजरत हसन की आंतों के 100 टुकड़े कर दिए और 3 दिन तक उन्हें खून की उल्टियाँ आती रही। जहर के असर से चेहरा बिल्कुल हरा पड़ चुका था। उन 3 दिनों में हजरत हसन ऐसी तकलीफ से गुजर रहे थे कि अगर वो तकलीफें किसी पहाड़ पर भी डाल दी जाती तो शायद वो भी बर्दाश्त न कर पाता। लेकिन आज कोई मदीना में आकर देख ले कि हुजूर का ये प्यारा सा नवासा कैसे जहर में तड़प रहा है। कुछ लोग थे कि जो हजरत हसन की ऐसी परेशानी देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन मदीना में नेक लोगों की भी एक बड़ी तादाद थी कि जिनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हजरत जैनब तो बेचारी बड़े भाई हजरत हसन को देखती जाती और एक खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के हुजूर में झोली फैलाकर दुआएं मांगती कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे भाई को ठीक कर दे। दोस्तों, आज मदीना के एक कच्चे घर में जहर से तड़पता ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वो हस्ती है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधों पर बिठाकर बाजार में घुमाते थे और लोगों से कहते कि ए लोगों, ये दोनों बच्चे मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने इन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ए अल्लाह, जो भी मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे आप भी उससे मोहब्बत करना। लेकिन आज मदीना में रसूल के इस नवासे को जहर में ऐसा तड़पाया गया कि उसका चेहरा हरा पड़ गया। आंतें कट कट कर खून की उल्टियां होने लगी। हर तरफ कोहराम मच गया था। लेकिन शायद अब तकदीर का भी यही फैसला आ चुका था और अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया था कि ए फरिश्तों, जाकर मेरे जन्नत के फूल हसन को मेरे पास ले आओ। इन जालिम लोगों ने मेरे प्यारे रसूल के बच्चों को बहुत तड़पाया है। हजरत हसन रजी अल्लाह जानते थे कि उस घड़े में जहर किसने मिलाया है, क्योंकि घर में बाहर का तो कोई बंदा नहीं आ सकता। लेकिन हजरत हसन रजी अल्लाह ने किसी को भी इस बारे में अपनी जुबान से कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि जैसे ही उनके छोटे भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह को खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि भाईजान, आप सिर्फ मुझे एक बार उसका नाम बता दो कि जिसने आपको जहर दिया है। तो हजरत हसन रजी अल्लाह पूछने लगे कि तुम उसके साथ क्या करोगे। तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर हजरत हसन ने कहा कि फिर तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्ज़ाम आ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही इंसान हुआ तो अल्लाह के पास जाकर मैं खुद ही उससे बदला ले लूँगा। 3 दिनों के बाद आखिर वो दिन भी आया कि हजरत हसन रजी अल्लाह को अपनी वफात बिल्कुल करीब नज़र आने लगी। तो अपने छोटे भाई हुसैन से कहा कि जाओ और मेरी नानी हजरत आयशा से पूछो कि आपका नवासा हसन अपने नाना के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या आपकी इजाज़त है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह जल्दी से हजरत आयशा के घर पहुँचे और कहने लगे कि नानी जान, मेरे बड़े भाई हसन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहते हैं, क्या आप इसकी इजाज़त देती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह भी अपने नवासे की ऐसी हालत सुनकर बैठी रो रही थी। हज़रत हुसैन की ये बात सुनते ही जवाब दिया कि हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। लेकिन जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने आकर अपने बड़े भाई हज़रत हसन को ये बात सुनाई तो वो कहने लगे कि ए हुसैन, मुझे डर है कि शायद मेरी नानी ने मेरी लाज में मुझे इजाज़त दे दी है, इसीलिए जब मेरी वफ़ात हो जाए तो एक बार फिर से इजाज़त मांगना। अगर उस वक्त इजाज़त दे दें तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच मेरी कब्र बनाना। ए हुसैन, एक बात का ख्याल रखना कि अगर नाना के कदमों में मेरी कब्र बनते वक्त कुछ लोग मुखालफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि ऐसी हालात में मुझे मेरी अम्मा हज़रत फ़ातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक्त आया कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने कलमा पढ़ा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। वफ़ात होते ही हर तरफ कोहराम मच गया। बाज़ारों और शहरों से लोग सिमट सिमट कर मदीना आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई कि एक रावी लिखते हैं कि हज़रत हसन के जनाजे में इतने लोग थे कि अगर कोई सुई भी फेंकी जाती तो शायद वो लोगों के इस बड़ी तादाद की वजह से ज़मीन पर ना गिरती।
हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया और फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने लाकर रख दिया गया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह का जनाजा पढ़वाया और फिर उसे लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाएगा, तो सभी तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे कि जब हमारे ख़ानदान में एक फ़र्द हज़रत उस्मान रज़ी को उस जगह दफन ना होने दिया गया, तो हम हसन को भी उस जगह दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम लोग होते कौन हो मेरे भाई को उसके नाना के बगल में दफन होने से रोकने वाले? याद रखना, अगर तुम बीच में आए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। करीब था कि मरवान के लोग और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के बीच एक जंग छिड़ जाती और मदीना फिर से सहाबा इकराम के पाकिज़ा खून से भर जाता। लेकिन उसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह आगे बढ़े और कहने लगे कि ए लोगो, तुम कैसे जालिम हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को भी नाना के बगल में दफन नहीं होने देते। लेकिन इस बात का मरवान के लोगों पर कोई असर ना पड़ा और वो तलवारें लेकर अपनी जगह पर अड़े रहे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने जब ऐसी हालत देखी तो हज़रत हुसैन को पास बुलाया और कहा कि ए मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन की वो वसीयत याद नहीं कि जो उन्होंने वफ़ात के वक्त कही थी कि अगर नाना के बगल में दफन होने पर कुछ लोग मुखालफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे अम्मी हज़रत फ़ातिमा की बगल में ले जाकर दफन कर देना। ये बात सुनते ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और कहने लगे कि ठीक है, चलो जन्नतुल बगी में मेरी अम्मी के पास कब्र खोदो, आज उसी जगह मेरे बड़े भाई हसन को दफन किया जाएगा। सारे लोग जल्दी से जन्नतुल बगी पहुँचे और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते होते हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में दफन कर दिया गया। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह की वफ़ात कोई ऐसी वैसी वफ़ात नहीं थी, बल्कि उसका असर आलमे इस्लाम पर ऐसा पड़ा कि बनु हाशमी की औरतों ने 1 महीने तक सोग मनाया, बाज़ारें बंद हो गई, लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया और हज़रत हसन की वफ़ात का गम ऐसा था कि सभी लोग अपना गम भूल चुके थे। जनाजे के बाद जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह मस्जिद पहुँचे तो देखा कि लोग बहुत परेशान हैं और बैठे रो रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह कहने लगे कि ए लोगो, आज जी भर के रो लो, क्योंकि मेरे प्यारे रसूल का सबसे महबूब बच्चा हमें छोड़कर जा चुका है। दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।